Hello, good morning everyone. The team of O2 and Kisan Pathshala is at Africa. We are presently visiting the site in a place called Salima in Malawi. It's a beautiful place, and yesterday we stayed across or maybe near the bank of the largest lake, which is having sweet water, and it was actually looking like a sea, a ferocious sea, because of a lot of rains maybe in Tanzania area. And it was such a beautiful sight to see and to be there, breezy, windy. And let me tell you guys that Africa that way has a lot of opportunities for all of us in terms of the virgin land lying across everywhere, and a lot of poverty, definitely, lack of knowledge, the quantity of land what they have. If I show, just look at this. But yes, why we can't of knowledge? Lack of resources. Maybe not the right direction to be thought of. They have not maybe thought of in these lines. But yes, we are here to explore that, and we have visited many farms in the western side of Africa, that is especially Malawi and Lilongwe area. Today we are at Salima, and this area is approximately 600 hectares of land which is around us, and our team, we are just evaluating the soil quality, do a lot for the society here itself. Plenty of thought processes which are going presently in my mind, in our team's mind. And when we see the poverty, when we see people, simple people, a lot of workforce available, a lot of people can be employed, rather can be given job opportunity at this particular place if we bring the farming on a large scale. And I think probably it has not been thought of in this area to take the farming as a profession or to do it in a corporate way, which we are planning to bring now. So when we see the land here, it's absolutely virgin, absolutely virgin. See, it's the black soil here. And maybe let me go to the team, what they are working on. Hello everyone. Hi. Hello. So what are we up to today? We're looking at this land, the soil. सॉइल एनालिसिस. Okay. एक चीज़ अगर आप दिखाओगे यहाँ पर थोड़ा उजाला, जो फावड़े का कट लगा है ना, उससे ये दिखता है कि पूरा चिपट के गया है. लेकिन वहीं का ये जो पीस निकला, ठीक है, अब इसमें रूट की संभावनाएं भी अगर आप देखेंगे, माइक्रो सर्जरी पर जाएंगे, Roots are there. 1 2 3 सिलिका कंटेंट दिख रहा है इसमें. ये पीस है नीचे का. सिलिका तो आपको यहाँ ये चमकते हुए दिखेगा, ये काफी सारा शाइन चमक दिख रहा है. But the sides are looking very this thing. चेंज नीचे है, फील करने पर कड़क है, बट रूट्स अंदर गई हुई है. और बारिश को कितना टाइम हुआ भाई? 2 महीने. 2 महीने, 60 दिन हो चुके हैं. मॉइस्चर मिलेगा आपको. मॉइस्चर है, बट इसमें वो चिकनाहट है साइड में, जो वॉल देख के जिस तरह से लग रहा है. ये 2 में प्लस पॉइंट बता रहा हूँ आपको. ये देखिए, अगर ये सिंगल चिकनाहट ही है और मलने पर ये पाउडर नहीं बन रहा है तो गलत है.
अभी चिकनाहट है, मलने पर पाउडर बन रहा है, मतलब आपको इसमें क्रैक्स कम मिलेंगे। जो अपने को वहाँ ब्लैक सॉइल में क्रैक मिलेंगे जो पिछले वो नहीं मिलेंगे। और अगर आप जो हल्की सी नमी वाली जो है ना स्मेल, है। ये एकदम ध्यान से समझने पर आएगी। ये अपने 6 से 8 इंच नीचे से निकाला है। एक सौंधी स्मेल है हल्की। ये शाइन है आपका वर्जिन लैंड का और न्यूट्रिशन वैल्यू का। अभी ये पूरे इस तरह से अगर देखें तो ये चमक रहा है ऐसे धूप में इसको हिलाने पर, ठीक है। तो ये प्रतीत अगर होगा, जब तक इसको मलेंगे नहीं तब तक ऐसा प्रतीत होगा कि ये हाई पीएच वाला मिट्टी है और बॉन्डिंग पकड़ के रखने वाला मिट्टी है। बट जैसे ही आप मलते हैं तो ये पाउडर बन रहा है। तो ये हाई पीएच नहीं है, ये यहाँ के न्यूट्रिएंट्स को दर्शा रहा है। ये शाइन सिलिका को दर्शा रहा है और फाइन डस्ट बन रहा है। ये मेरी उंगलियों में पूरा का पूरा वो जो लाइनें हैं उसमें अटक चुका है। पॉजिटिव साइन है। बनाना पपाया परफेक्ट जगह है ये। अगर नैसर्गिक कुछ चीज़ें हम और देखें जो मुझे वहाँ से दिखा तो मैं इधर आया। ये जो इसका बायोमास गिरा हुआ है, इसके बाद का भुरभुरापन और एक अलग दिखेगा। ये जो लकड़ी और ये मिट्टी जो बनने की कगार पर जा रहा है, ये ऊपर की लेयर हटाने के बाद का नीचे का जो भुरभुरा मिट्टी है, ये केचवे की विष्ठा इसमें शामिल। जो हल्के से बारीक गोले दिखेंगे ना, दिस दीमक। प्रकृति का साइन क्या है पता है? हम बात कर रहे हैं, रास्ते में कल हमने फर्टिलाइज़र की दुकानें विज़िट करी। हाँ जी। वैज्ञानिकों ने बता रखा है कि कोई भी पेड़ पौधा है उसको 17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर आज आप पढ़ाई करोगे 2024 में तो 17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। 96 99 तक 13-14 न्यूट्रिशन थे। वो जो न्यूट्रिएंट थे, जब ये कहा जाता था कि 14 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है पौधे को, फिर 2000 वाली जो दशक थी उसमें 15-16 न्यूट्रिशन हुए, अभी 17 न्यूट्रिशन है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या 1996 में 14 ही प्रकार के पोषक तत्व पौधे को लगते थे और आज 17 लग रहे हैं? वो तो सेम ही होंगे। जब भी उतने ही थे आज भी उतने ही हैं, केवल वैज्ञानिकों ने खोज में 2-3 ऐड कर लिए। और हमें आज भी पता नहीं है कि अगली जनरेशन वैज्ञानिकों की और कुछ न्यूट्रिशन पौधे के लिए खोज लेगी तो वो 17 की बजाय 27 भी हो सकते हैं, ये पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति से पौधा वो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर रहा है। कर रहा है। अभी ये जो मैं शाइन दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो जीवात की कॉलोनी भर भर के है, जैसे ये दीमक इसको चट कर रहा है, यहाँ पर आपको ये हटाने पर हल्का जो महीम दाना जो दिखेगा ना, ये केचवे की विष्ठा है। प्रकृति ने हर पेड़ पौधे के लिए और चलने फिरने वाले प्राणी के लिए एक दूसरे का पूरक कॉम्बिनेशन बना के रखा है। जैसे मेरी नज़रों में मैंने जो फील किया है, पूरे विश्व में 2 तरह के ही मात्र प्राणी हैं, एक चल और एक अचल। एक चलने फिरने वाले और एक स्थिर, 2 ही प्राणी हैं। जितने चलने फिरने वाले प्राणी हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं और कुछ निकालते हैं। और स्थिर प्राणी जो है वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी भोजन खाते हैं और वो भी कुछ निकालते हैं। अभी ये आम का पेड़ है। आम के पेड़ में साल भर बीता, 4 साल बीते, 5 साल बीते, अमियाँ आ गई। अभी आप नहीं हो उसके पास। वो आम का पेड़, वो आम को पेड़ पे पकाएगा, पूरा पीला होगा, उसका डंठल से फिर वो
एक उम्र के बाद निकलेगा, गिर जाएगा। वो आम के पेड़ का वो फल उसके क्या काम का है? वो वेस्ट हो गया क्या? उसके कोई काम का नहीं है, उसके लिए वो वेस्टेज है। वो चलने फिरने वाले प्राणी के काम का है, उसका खाना है वो? उसका खाना है। और चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन है। स्थिर प्राणी का वेस्टेज हम जैसे चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। लाइफ साइकिल है बेसिकली। कीट, पतंग, तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, फंगस। तो ये जो दीमक चलने फिरने वाला प्राणी है, ये कचरे को खा रहा है और ये जो विष्ठा निकाल रहा है, ये आपके यहाँ के प्लांट का भोजन है। अभी ये जो तुलसी की एक प्रजाति है, इसकी मैंने आपको अभी खुशबू दिखाई। ये जो अरोमा है, ये आप अपने घर में जो तुलसी लगाते हो ना, उसका स्मेल नहीं आएगा इसके जैसा। वो अलग है, वो दूर से, काफी दूर से वो अरोमा आ रहा है। ये एक्चुअली वो बेसिल का दूसरा फॉर्म है Yes. जो खाने में यूज होता है। यस। तो ये जो ज़मीनें हैं ना, जो हम यहाँ अफ्रीका में घूमकर देख रहे हैं, ये वर्जिन लैंड है। और नीचे मिट्टी, मैं कहना ये चाह रहा था कि इकोसिस्टम भरा पड़ा है। जो हम हिंदुस्तान की अगर बात करें कि 30 साल पहले जो ज़मीन थी, वो ज़मीन आज यहाँ पर है। और यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटियाँ हैं। यहाँ अन्न पैदा करेंगे तो खुद का भला होगा, रोजगार जनरेट होगा, 2 पैसे कमाएंगे। बट उससे बड़ा, यहाँ अन्न पैदा करेंगे तो कुछ भोजन की व्यवस्था होगी यहाँ के इकोसिस्टम के, ह्यूमन बॉडी के लिए। और यहाँ अन्न पैदा करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो हिंदुस्तान में फर्टिलाइज़र डालने से पहले थी, 30 साल पहले, वो यहाँ आज है। और कैंसर फ्री आप कुछ भी उगा लो यहाँ पर। डीएपी, यूरिया, पोटास के बगैर की फार्मिंग जो है वो यहाँ पर है। और आप स्टार्ट भी करो ऐसा, तो उसमें फर्टिलाइज़र को नो एंट्री, ज़रूरत नहीं है, एनपीके की ज़रूरत नहीं है, जो वैज्ञानिकों ने मशीनरी के द्वारा खाद बनाए हुए हैं, उसकी आवश्यकता मेरा नहीं है। वही क्वेश्चन था एक्चुअली, जो नैसर्गिक खाद चाह रही है थी, वही यूज़ करना है। कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है अबाउट द फर्टिलाइजर्स। जो स्कूल ऑफ थॉट है हमारी किसान पाठशाला का एंड O2 का, जो हम वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स द फार्मिंग, Yes. सस्टेनेबल फार्मिंग, तो आपका थॉट प्रोसेस फर्टिलाइजर्स को लेके क्या है? एक्चुअली फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, इकोसिस्टम डेवलप्ड रखना है। जो मैंने अभी आपको एक चर्या बताई कि चलने फिरने वाले प्राणी स्थिर प्राणी के पूरक है, स्थिर प्राणी चलने फिरने वाले प्राणी के पूरक है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उनकी विष्ठा हमारा भोजन है, हमारी विष्ठा उनका भोजन है। आप इसमें फंगस बोल सकते हो, आप इसमें देसी केचुआ बोल सकते हो, इसमें आप दीमक बोल सकते हो, जो चल फिर कर रहे हैं। ये दीमक की जो विष्ठा है, ये यहाँ के पेड़ पौधे का भोजन है। तो इकोसिस्टम ही उन पेड़ पौधों का भोजन है। हमें दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं कि हमें एनपीके का उपयोग करना है। जस्ट कल मैंने रुक करके जो वहाँ का हायरार्की लिया, वो आपके दिमाग तक केवल पहुँचाने की आवश्यकता थी कि ये फर्टिलाइज़र है और इनके ये रेट है। बट हम जो यहाँ फार्मिंग करेंगे उसमें एनपीके को लाने की ही आवश्यकता नहीं है। ओके, बहुत अच्छा। तो टोटल ऑर्गेनिक। और आप अगर इस तरह की जमीन में एनपीके ला करके खेती कर रहे हो तो फिर तो इंडिया में ही करो भाई, यहाँ जरूरत नहीं है आपकी। फिर तो जरूरत नहीं है आपकी यहाँ पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वो 100% ऑर्गेनिक पे ही चला जाएगा। पूर्ण तरीके से इकोसिस्टम वाला फंक्शन होना चाहिए। एक कट थोड़ा नीचे और करेंगे, नीचे वाले गड्ढे पे। यहाँ पर अपन ने अभी ऊपर के तल पे खोदा था, ये यहाँ पर नीचे इस जगह पर खोदना है। हाँ, ओके। मीनवाइल ये जब तक थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं Yeah. लैंड को, मेरा एक प्रश्न और था, मे बी प्रशांत जी या नवनीत जी में ऑल्सो पिचन इन दैट, कि हम सलीमा में हैं आज, मिट्टी आएगी। और सलीमा में टूवर्ड्स मे बी लिटिल मोर साउथ ऑफ सलीमा, जैसा मुझे पता चला कि लॉट ऑफ बनाना प्लांटेशन वॉज देयर, फार्मिंग वॉज देयर। तो ऐसा क्या रीज़न था दैट इट गॉट closed, or maybe people have to come out of it? Actually, it was like bunchit of virus in 2016, and it spread widely in the whole southern region of Malawi. Okay. And due to that, the whole crop was destroyed, and the small farmers, they didn't, they didn't gather the strength to do it again. So basically, can we attribute this to lack of knowledge also, lack of Yes. professional It was knowledge new about for it? them. They didn't know what is bunchit of virus. Correct. उनको पता ही नहीं था, पहले कभी आता ही नहीं था। तो it came for the first time, और first time में जब पूरा crop destroy हो गया,
तो वो लोग फिर डर गए, ऐसा हुआ। उनको नॉलेज नहीं था, उनको आइडिया ही नहीं था कि इसको ट्रीट करना है, क्या करना है, कैसे रोकना है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज लैक ऑफ नॉलेज, यस। इसमें डॉक्टर बलराम एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लाइक वी हैव सीन द इरिगेशन पैटर्न ऑल्सो। हमने जो अभी बनाना फार्मिंग देखी यहाँ पे ओवर लिलोंग वे अराउंड दैट एरिया एंड नाउ सलीमा एज वेल, तो हमने जो इरिगेशन पैटर्न देखा प्लस बंची टॉप का जो बताया नवनीत जी ने, सो स्टिल वी आर प्लानिंग टू ट्राई इट आउट इन सलीमा, सेम जोन कह लीजिए आप, नहीं, मे बी। zone हमारा अभी वी आर इन सेंट्रल जोन। हाँ हाँ, दैट वाज टॉप आया था, दैट वाज इन सदर्न टिप, फार फ्रॉम तो कल हमने जो लैंड और देखी थी डॉक्टर बलराम, और उसमें जो एनालाइज किया था, एंड आपका ओपिनियन क्या है ऑन द बंची टॉप थिंग एंड वेदर इट इज रिलेटेड टू इरिगेशन पैटर्न और Yes, yes, सॉइल yes. पैटर्न? बस कुछ चीज़ें हैं, बस रुकवा दो इसको। कुछ चीज़ें हैं मैन जो इरिगेशन से रिलेटेड है। दूसरा फैक्टर है कि आपका मिट्टी से रिलेटेड है। जहाँ बहुत ज़्यादा क्ले है, जहाँ बहुत हेवी ब्लैक सॉइल है, और जहाँ आप ऑलरेडी चावल की खेती कर रहे हो, कंटिन्यू पानी में पानी भरा जा रहा है, और वहाँ पर केला कर रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर इरिगेशन पैटर्न कुछ है नहीं, पंपिंग करने वाले कोई सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है, जनसेट नहीं है, और पंपिंग के सिस्टम नहीं है। तो नदियों के किनारे डब्बे से पानी दे करके, या नदियों का पानी जहाँ तक चढ़ता है और जब वो स्लोपीज से उतरना चालू होता है, वहाँ पर ये फार्मिंग कर रहे हैं। तो वो जो चढ़न और उतरन है, वो कीचड़ 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 और ज़्यादा समय तक फंगस रूट में डेवलप्ड होना, और फिर जब पानी देना, तो हमने पैटर्न देखा कुछ पिछले वीडियोस में दिखेगा आपको कि जहाँ पौधा है उसके साइड में गड्ढे कर कर वहाँ पर पानी भरा जाना, तो वो ताज़ा पानी की बजाय बासी पानी वहाँ पर रहना, वो मोस्ट प्रॉब्लम है कि आपकी सॉइल बोर्न डिसीज़ आना, बंची टॉप आना, और पनामा विल्ट का आना, ये रहेगा ही। केले को ले लो या किसी भी पेड़ पौधे को ले लो, ताज़े पानी की आवश्यकता है। ताज़ा पानी इन द सेंस कि हमने पानी दिया और वो निकल गया, अब कल दूसरा पानी या 8 दिन बाद दूसरा पानी आएगा और वो निकल जाएगा। पानी वहाँ पर रूट में रहा तो वो सड़न क्रिया पैदा करेगा। बहता पानी भी रहा तब भी चलता है, रुका हुआ पानी गड़बड़ करता है, और वो मेन फैक्ट था जिससे दिक्कतें आई है। ये अभी फिर गड्ढा किया है एक और, तो ये किए ऊपर के तल का मैंने ये निकाला था, ये नीचे के तल के यहाँ पर आ चुके हैं, ये पीस नीचे के तल के हैं। प्रशांत भाई, अगर आप पानी का बॉटल लेकर आओगे ना तो बहुत अच्छा एनालिसिस होगा। ये सबसे ऊपर के तल का है, ये मिडिल है, और ये लास्ट है, और सभी में सिलिका साइन मार रहा है। सिलिका का कंटेंट है, और ये भी न्यूट्रिशन की ही गिनती में आता है। दोमट मिट्टी, मटमेली, बायोमास कार्बन की हम बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के सॉइल टेस्ट करते हैं और जो डॉक्टर्स गाइड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मिट्टी का टेक्सचर है रेड येलो, और ये आप ध्यान से लाइन देखेंगे, ये ब्लैक 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 ब्लैक, ये लाइन क्या है? जो पेड़ पौधा था इसकी जो जड़ थी वो रूट यहाँ पर थी। ये रूट पौधा डिस्ट्रॉय होने के बाद सूखी, रुकी, और वो कार्बन में कन्वर्ट हुई। ये जो ब्लैक लाइन है ये है बायोमास कार्बन। ये जो ब्लैक लाइन है, ये अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला, ये अभी थोड़ा सा मोटा हिस्सा है, ये दिस इज बायोमास कार्बन। और इतना बायोमास कार्बन आपको हिंदुस्तान की किसी सॉइल में देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन और सीक्वेस्ट्रेशन। यह चीज जब कोई प्लांट इसमें जीवंतता ले रहा है और वो अपना फल दे रहा है तो वो एक नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और वो फल आपका केवल फल नहीं है, वो मेडिसिन का भी काम करेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ मेडिसिन का भी काम करेगा। अब ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये एक सेंटर पॉइंट वाला हिस्सा, ये जड़ सूख करके लास्ट एंड पॉइंट पे चली गई और बायोमास कार्बन बन गई। मतलब यहाँ पर इस जमीन में लगभग 3 से 5% बायोमास कार्बन हो सकता है। ढक्कन होगा ना इसका? हाँ, ढक्कन में डालो, और ढक्कन मुझे दो।
यस, मिट्टी आपको क्लियर फूलती हुई दिखेगी और पानी को ऐसे लगेगा कि वो खुद पी रही है, अपने अंदर ले रही है वो। हाँ, और उसका आकार चेंज हो रहा है। यस, दिस इज राइट साइन, ये सही साइन है। अभी ये चाहिए अपने को, फूलन और सोखन, ये दोनों प्रक्रियाएं सही हैं और ये अंदर पोरश होगा तो ही यह चीज़ होगी। अभी ये 3 तरह का पॉकेट है यहाँ पर। हाँ, इसमें डाल दो। और हमने 3 टेक्सचर लिए हैं। लगभग ये 1 से 1.5 फीट गहरा गड्ढा हुआ है ऊपर के तल से। ये फर्स्ट सीन था, ये बीच का था, ये लास्ट का है। ये 1.5 फीट नीचे का मिट्टी है और ये सबसे ऊपर का है। इसमें ऑलरेडी आपको बायोमास दिखेगा बहुत सारा, डलते के साथ गायब हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पोरस है ये, पानी की बूंदें डलते के साथ गायब हो रहा है ये। अभी तक का हमने जितना विजिट किया ना, सबसे बेस्ट सॉइल है ये। जितनी होल और पोल दिख रही है, ये कीट पतंग कीड़ों के आने जाने के रास्ते हैं ये। और बाकी के ये जो हड्डी है, ये बायोमास बॉडी है, ये सूखने के बाद कार्बन बनता है, उसका लक्षण है। ये एक तल आता है 6 इंच का। इसके बाद में जैसे बारिश होती है, ये गल गल करके इसका रसा यहाँ पे आता है और ये तीसरा तल आता है। 6-6 इंच के ये तीनों तल है। सेम ये भी वही प्रक्रिया हो रही है, लेकिन आपको इसमें फूलने वाला सेंटेंस थोड़ा सा धीमी गति से दिखेगा, बट फूल रहा है, पानी अपने अंदर वो ले रहा है और फूलन प्रक्रिया कर रहा है। ये किसी भी सॉइल को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया प्रक्रिया है ये, कि इसमें ईसी कितना है, इसमें फूलन प्रक्रिया कैसी है। और ये तीसरा तल, बह के जाने की बजाय अंदर उतर रहा है। ये पूरा स्लोप है, बट वो बह के जाने की बजाय अंदर उतर रहा है। थोड़ी सी दूर पर जाने पर ही पूरा का पूरा उतर गया है वो अंदर। एब्जॉर्बिंग। हाँ, अभी इसको रिपीट अगर उसी जगह पर डालते हैं, तब भी उस दायरे के बाहर अभी नहीं जा रहा है, ये उस दायरे तक ही पहुंच रहा है। अभी डालने पर गड्ढा हो रहा है, पानी की बूंद जो गिर रही है उससे वो जगह छोड़ रहा है। जहाँ बूंदे गिरी है बस वो गड्ढा हो गया वहाँ पर, वो खुद से ढीला हो गया। ये एकदम सही शाइन है। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो ऊपर की 6 इंच की मिट्टी पर आपको लगभग 4 से 5% बायोमास कार्बन मिलेगा। और ऐसी सॉइल में भूल कर भी डीएपी यूरिया पोटास लाओ ही मत। क्यों खराब करनी है? इसको खराब मत करो। खराब नहीं करनी। यस, ये 3rd फेज। अब हाथ लगा कर देखो, सॉफ्ट है, स्पंजी है, स्पंजी है। आप थोड़ा सा साइड हो जाए, इनको साइड करें। हाँ। या परफेक्ट है, देखो ना। और फील करोगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि रेत है। रेत है नहीं, वो अच्छा है, वो हाँ, थोड़ा स्टिकी है, वो सिलिका है। इसको अंगूठे से और उंगली के बीच में मल के देखो। हाँ, उसमें ग्रैन्यूल्स हैं। यस, अभी तो कितना 10 बूंद गिराया होगा ना। ये सारे शाइन जो है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिशन वैल्यू, बायोमास कार्बन, पोरसपन, यस, ये जो इसका पत्थर जैसा जो दिख रहा है उसमें भी पानी पूरा सोखा जा रहा है। फावड़े की कटिंग से हुआ है ना। हाँ, बट उसमें भी पानी पूरा सोखा जा रहा है। पानी मतलब ऐसे बह के बाहर नहीं जा रहा है। हाँ, और इसमें भी आप देखोगे तो स्पंजीपन आया है ये। यस, थोड़ा क्लेई है, परफेक्ट सॉइल है, थोड़ा बहुत क्लेई है, perfect बट soil सैंडी भी है साथ में। चाहिए, ये सॉइल के कॉम्बिनेशन है। और अंदर देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि ऐसा सॉइल मैंने इंडिया में देखा नहीं है अभी तक। ये जो ब्लैक 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 जो दिख रहा है ना, यह बहुत ही प्यारी सी चीज है। अभी मैंने देखो आपको जड़ें दिखाई थी, इसमें नमी होने के कारण ये अभी ब्राउनी है ये। हाँ, ये जीवंत रूट है। ये जो रूट है ये जीवंत है। अब ये रूट जब सूखेगी और ये ड्राई होगी तो ये बायोमास कार्बन में कन्वर्ट होगी। ये रूट का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं,
जो यहाँ से चली है ये निकल कर यहाँ तक आई है। ये 2 महीने के बाद भी इसमें इतनी नमी है। बिल्कुल। ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक। Look at this, how it has happened. इसको आप वो करो तो it's again giving that brown अभी thing. हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बायोचार की प्रथा चालू करी है कि बायोचार आप बनाएं और उसको मिट्टी में डालें ताकि वो कार्बन को सोखने की प्रक्रिया बने। ऑलरेडी इसमें आप कह सकते हो बायोचार भर भर के ये लाइन देखो जो मैंने बतलाई थी, रूट बन करके जो गई है ये लाइन पूरी की पूरी क्लियरली आपको दिखेगी। नैसर्गिक बायोचार। कार्बन क्रेडिट वालों ने अभी एक मुहिम छेड़ी है कि जो भी आपके जीवंत पेड़ पौधे हैं वो जब मर जाएं उसके बाद उनकी बॉडी को आप ऑक्सीजन के बगैर हीट करें, जलाएं, गर्म करें और उसका कोयला जो बनेगा उसको पीस करके खेत में डालें। दिस इज बायोचार। और ये अगर आप करते हो तो आपको कार्बन सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कुछ पैसा मिलेंगे, कार्बन क्रेडिट। यहाँ पर नेचुरल ऑलरेडी प्रकृति यही करती है और इसी को अब हम दोहराने जा रहे हैं हमारे खेतों में। पहले हमने खराब किया DAP यूरिया पोटाश डाल करके, अब हम चाह रहे हैं कि हम बायोचार डालें। सो नवनीत जी, अच्छी सबसे बेस्ट जगह अभी तक हमने जो विजिट किया उसमें ये वाला लैंड है। Prashant has got the sigh of relief actually. एंजल, आपका क्या ओपिनियन है? Yeah, even I find this to be really Yes. good. ये शाइन आपको मिलेगा नहीं कहीं पर भी। और ये न्यूट्रिशन भर भर के है। आप फसल लाकर यहाँ लगा दो बस, खुद ही चलेगी, पानी देना है बस। हाँ, the main thing जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है BK is हैंड वॉश the करो। right way of irrigation. यस यस, इरिगेशन राइट Irrigation. चाहिए। Yes. Yes. धीमे धीमे। So now if कम we कम do कम इस जगह पर बोरवेल्स और कम कम कम। पानी कोई कमी नहीं। Okay. एटलीस्ट इतना मुझे पता है, इस एरिया में मैं ड्रिल कर चुका हूँ। Okay, great. So I think if we go with the right type of irrigation, Yes. water management, यस। then I think we can hack it. एक और really खूबसूरती well. चीज मैं दिखाऊंगा, आप आपके मोबाइल को जूम करेंगे तो धूरा एक दिख रहा है, टीला हल्का सा मिट्टी का, दीमक का टीला, दीमक का घर नजर आया सामने बकरियों के Yeah, आगे। yeah. That's ये it. जूम करो, आएगा, This one? जूम करो और पहले? यस, हाँ जूम करो और जूम करो, ये दिख गया। यस, अभी दिखा, जूम करो। यस, Yeah, this है one. ना? हाँ. हाँ, इतना बड़ा टीला This is आपको the इंडिया में colony. किसी मिट्टी में नहीं दिखा होगा। हाँ, colony of Yeah? termites. Yes. Yes. ये मेरी हाइट से ज्यादा होगा, ये लगभग होगा 8 से 10 फीट का टीला। 8 फीट तो है। मेरा ऐसा हाथ करने पर भी वहां पर नहीं जाएगा, इतना बड़ा टीला है। मतलब आप यहाँ की न्यूट्रिशन वैल्यू को समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा होगी इस। वो है, उसके पास हाँ। दूसरा भी है, वो रहा। हाँ यस, उसके बाद में और भी है, और भी है। एक ये है, यहाँ पर भी है। सामने। This is very huge. ये पूरा टीला, पास से भी जाके देख अगर आप इसकी मिट्टी को लेकर के 10% कॉम्बिनेशन, 100 लीटर पानी, 10 किलो इस टीले की मिट्टी 2 दिन तक गलाओ, उसमें वाइसेनोमेटा 100 ग्राम डाल लो, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आता है, इसको रहने दो 72 घंटे, और दुनिया के किसी भी प्लांट पर आप स्प्रे करते हैं तो कोई भोजन देने की जरूरत नहीं, कोई स्प्रे देने की जरूरत नहीं, ये न्यूट्रिशन से भरा पूरा है ये टीला। ये बना कैसे होगा? दीमक ने अपनी पूरी उम्र का कस निकाल करके वहाँ पर ले जाकर रखा है, अपना घर बनाया है। तो वो इस तरह की मिट्टी का उपयोग करती है कि उनमें उसका विस्टा भी रहता है, क्ले भी रहता है, और वो बॉन्डिंग करने के लिए, चिपकने के लिए वो कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ में वो मिट्टी जाती है। Correct. ओके, थैंक यू। So I think with Yeah. Prashant's relief, we can 4 दिन के बाद प्रशांत को आज शांति मिल रही है कि आज उनका एक can लैंड come फाइनल to हुआ the है। end of this video. Thank you so much. एक चीज और Okay, दिखाओ बंद okay. करने के पहले। अभी हाँ। हमने यहाँ हैंड वॉश किया है, हाँ. ये मिट्टी है मडमेली, और जैसे ही पानी गया तो बायोमास कार्बन भर भर के निकल के दिख रहा है कि कितना है इसके अंदर बायोमास कार्बन। Okay. The lovely soil will be back with you very soon. With this, I sign off. Bye bye.